Certificate Agri-Graduate Guide Program CAGP, hosted by AgriHuners and Your Agri Story. We are thrilled to have you join for us for this 5-day journey designed to empower agriculture students. 5 topics will be discussed in these 5 days. Our sessions will provide key insights, practical knowledge, and guidance from industry experts to help you navigate the agriculture sector effectively. Today's topic is career scope of agri graduate and agri input companies. And we are honored to have Mr. Manmat Biradar, the founder director of TIA Leadership Skill Company, as a speaker for this session. Mr. Biradar has over 20 plus years of experience in the agriculture industry and leadership development. His expertise in helping young graduates grow into industry professionals is highly recognized. Today, he will be sharing insights into the vast career opportunities available in the agri-input company, providing a roadmap for the development of career. You all are free to ask questions in chat box, and all your queries will be answered by the end of the meeting. And please keep your speakers off during the ongoing session. Without a further ado, I would like to hand over the session to Mr. Biradar, sir. Sir, the floor is yours. Yes. Can you hear? Can you hear all? So just if you can hear me, then just Yes, sir. message yes in the Out there. chat box. Yeah. I think everyone can hear. Is it? Hello. Yes, sir, we Yes. can hear you, sir. Okay. Manvi, you can hear, na? Is it right? Audio is right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Great. Great. So very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. हिंदी is okay for all. हिंदी and English. Okay. We will मतलब हम दोनों भी भाषा यूज करेंगे. हिंदी यूज करेंगे और इंग्लिश बीच बीच में यूज करेंगे, है ना. दैट विल बी, हाँ ओके. हिंदी अल्सो, हिंदी भी चलेगा. हिंदी में भी मैं आपको शेयर करूँगा सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं. हिंदी अल्सो ओके फॉर मी, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. आई थिंक ऑल हियर आर, आप सभी जो यहाँ ऑडियंस है, सभी ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं मेजरली, एंड दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन agri input sector. Basically what I actually listened from Raj. That's right, Raj, I think. Right ना? Okay. तो हम शुरू करते हैं दोस्तों. शुरू तो हमने किया है, मतलब आई मीन हम अभी आगे का सेशन हम वी विल स्टार्ट इमिडिएटली. हम आज ये करेंगे जो डिस्कशन, आज की जो प्रेजेंटेशन है अपना, आज का जो सेशन है, फर्स्ट सेशन है अपना, जो एग्री हुनर्स के जो प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं. सो एग्री हुनर्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड दे परस्यू गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस प्लेटफॉर्म. So we will start and basically before we start, what I want to actually assure you that देखिए ये 2 घंटे का सेशन है. बेसिकली आप पेन एंड पेपर लेके रखो. बहुत ही अच्छे इंसाइट्स आपको कुछ मिलने वाले हैं इधर. बहुत ही जो प्रैक्टिकल, जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल के साथ साथ आज की तारीख में जो नई नई कुछ चीज़ें पूरा वर्ल्ड में या फिर अपने भारत में आ रही हैं, उसके बारे में हम एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्री टेक सेक्टर, एग्री बिजनेसेस सेक्टर, फूड सेक्टर, जो सारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड बेसिकली उसको कैसे केटर करना चाहिए हमको, अगर एग्रीकल्चर करियर हमको करना है बहुत अच्छी लेवल पे अपने जॉब में, करियर में. लैडर्स जो होती है अलग अलग, उसको ग्रो कैसे करना है, उसको हमको माइंडसेट कैसे बेसिकली चाहिए. देखिए हर एक मतलब आदमी जो यहाँ है, या हर एक everyone here, he want to pursue the career, and secondly he want to grow in his career. देखिए आज एक लेवल पे आज हैं आप, लेकिन हम सभी एक चाहते हैं कि एक ग्रो, नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हो जाए. ये अपना हर एक का एक ड्रीम होता है.
एंड दूसरा ये भी होता है कि टॉप पोजीशन पे हम कैसे जाए, ये भी उसमें है। तो ये टॉप पोजीशन पे जाने के लिए क्या हमको माइंडसेट चाहिए, उसी सभी के बारे में वी विल डिस्कस हियर। आई विल शेयर माय स्क्रीन फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन अब मेरी शेयर करता हूँ एंड वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। If my screen is visible, so you can just say yes in the comment box, so I can start my presentation. Okay, right. I think my screen is visible. So welcome again, Agri Input Companies career opportunities in agriculture sector, in food sector, basically agri businesses, agri tech sector. सो दिस इज़ टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है बेसिकली एजेंडा जो अपना है दोस्तों। देखिए हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, फोकस एरियाज क्या है, फोकस कौन सी लेवल पे हमको करना चाहिए, कौन सी एरियाज पे करना चाहिए। देखिए एज अ करियर हम जब परस्यू करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो एज एन ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो कॉमन एक कुछ फैक्टर्स होती है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होती हैं, या फिर हम उसको बोलेंगे कुछ चैलेंजेस होती है कंपनीज में। तो वो कौन सी माइंडसेट हमारा कैसा चाहिए जब किसी भी हम कंपनी में काम करेंगे, या फिर हम इंटरव्यू को जाएंगे, या फिर हम जॉब शिफ्ट करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो उसका माइंडसेट एग्जैक्टली क्या चाहिए एंड what is the right mindset to approach all these things. So I will detail you out about all these things. Then I will discuss about ask system. What is the ask system? Attitude, skills and knowledge, which is very much needed in the career sector. हम जॉब के जो सेक्टर में जाते हैं, सो करियर सेक्टर में ये एटीट्यूड अपना क्या मायने रखता है, स्किल्स क्या मायने रखते हैं, नॉलेज क्या मायने रखता है, that we will understand. And fourth is expectations of the company. देखिए हम सारे जो लोग हैं हम कंपनी के लिए काम करते हैं, मतलब what are the actually expectations of the company, what are our expectation, that is also important, and we are working for the company, so what is actually the expectation of the company, and finally summary हम उसमें करेंगे। so ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। अभी देखो हाउ टू फाइंड द राइट करियर अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द राइट करियर अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू मेक यू द राइट फिट। अभी आपको आज की तारीख में राइट फिट होना अपनी जॉब में, दैट इज द बेसिक थिंग एवरी एंटरप्रेन्योर और एवरी कंपनी इज नाउ लाइक लुकिंग फॉर। हर कंपनी चाहती है कि एक राइट फिट कैंडिडेट मुझे चाहिए। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट तो अवेलेबल है मार्केट में, ग्रेजुएट तो बहुत सारे होंगे, पीएचडीज होंगे, बहुत सारा अवेलेबल मार्केट में, बहुत लोग अवेलेबल है, बट एवरी एंड ईच कंपनी वांट द राइट फिट इन मेनी पर्सपेक्टिव। उसमें सिर्फ जॉब नॉलेज तो एक ही है, उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे मैंने आपको मैं आगे बताऊंगा। हाउ टू रिटेन एंड ग्रो इन द जॉब। सी जॉब में एक तो रिटेन रहना एक बात होती है, उसमें ग्रो होना एंड उसमें प्रमोशन पाना एक दूसरा एक चैलेंज होता है। सस्टेनेबिलिटी, सी हाउ टू गेट एन जॉब इज अ फर्स्ट चैलेंज, सेकेंड इज हाउ टू रिटेन द जॉब, एंड थर्ड इज हाउ टू ग्रो द जॉब, हाउ टू ग्रो इन द जॉब, लाइक प्रमोशन कैसे, उसमें ये क्या उसमें एक्चुअली हमको चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन। देखिए जॉब में भी होता है ना, बहुत सारी कंपटीशन होती है, सो और इवन इन जॉब हम जब रहते हैं, हमारे कॉलीग्स होते हैं, बहुत से साथ में काम करते हैं हम सारे, तो क्या चैलेंजेस हमको होते हैं उसमें। इवन आपको मैं बोलता हूँ जॉब में वी आर ऑल कॉट अप विथ लाइक कॉरपोरेशन में होते हैं, उसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बोलते हैं। सो वो भी होता है कि मैं जॉब में हूँ तो मेरा एक कोई कॉलीग है वो मेरे साथ कॉम्पीट करता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, कोई बॉस ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे कॉलीग्स कुछ ऐसे होते हैं, ये सारा जो जिसको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी बहुत मायने रखता है हमारी हायरार्की में, जो हम आगे जाते हैं, हम प्रमोशन पाते हैं, या फिर हम आगे जाके कुछ बड़े बॉस बनते हैं, तो उस टाइम में भी इसको क्या किस नज़रिए से देखना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, ये हम सीखेंगे। हाउ टू फाइंड द कल्चर, हाउ टू फिट इन द कल्चर ऑफ द कंपनी। देखिए
इम्पॉर्टेंट ये है कि एवरी कंपनी इज हैविंग इट्स ओन कल्चर। हर कंपनी का एक अलग अलग कल्चर होता है, क्योंकि हर कंपनी रिजल्ट तो देती है, समझो सेम ही प्रोडक्ट रहता है बहुत सारे, इसमें तो प्रोडक्ट तो सेम ही होता है, बट द कंपनी विच इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द कल्चर, उसका कल्चर हर एक कंपनी का अलग होता है। तो ये कैसा चाहिए, हाउ टू बी द वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंपनी। हमको कंपनी में वैल्यूएबल एसेट एज एन एम्प्लॉय कंपनी को लगना चाहिए। वी शुड बी दैट दिस एम्प्लॉय शुड बी रिटेन्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। कंपनी को ये हम एसेट लगनी चाहिए, नॉट एन लायबिलिटी। एंड व्हाट इज दैट, हम वो कैसे करना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दीज बिहाइंड सीन्स। बिहाइंड सीन्स क्या होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी की, वाई कंपनीज आर लुकिंग व्हाट दे आर लुकिंग, वाई कंपनीज आर लुकिंग दैट, एंड उसका बिहाइंड द सीन्स क्या होता है उनको। और उसके बाद में हम समझेंगे कि हाउ द एग्री इनपुट सेक्टर बिजनेस वर्क्स, उसके डिटेल के बारे में मैं आगे जाऊंगा। बट फर्स्ट आई विल लाइक डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, because these things are common everywhere, common for all, and these are not taught in anywhere. In MBA class also these things are not taught. So this is very important to understand. So ये हम समझेंगे। उसके थोड़े से जाने से पहले मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड भी बताऊंगा आपको थोड़ा सा। मेरा 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस एग्री इनपुट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने MBA किया, and after that I started my career in companies. 12 years I was in private sector jobs, and 12 years I was in some agriculture company, government agriculture company job. So and बाद में I started my own company in last 2 years. So that was my brief introduction, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि why I am telling what I am telling। मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो किस लिए बता रहा हूँ। and that time my very prime intention here is to be वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू आर डूइंग। आप जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बी क्लियर ऑन हु यू आर। आप आदमी जो कौन है, जो आप जिसने मतलब जैसे आपने आपकी अपब्रिंगिंग हुई, आप ग्रेजुएट हुए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए, PhD हुए, जॉब में हैं, जो कुछ भी है, लेकिन आपको वो अलाइनमेंट कैसी चाहिए उसके बारे में भी मैं आई विल डिस्कस। सो फोकस एरियाज, देखिए फोकस एरियाज अभी इसमें है कौन सी भी कंपनी, विच एवर कंपनी यू आर लुकिंग फॉर, एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर द पर्सन, फॉर द कैंडिडेट हु इज लाइक, उसमें 3 चीजें बेसिकली देखती है। फर्स्ट उसका एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज। अभी एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। See, we cannot see the attitude, this is not a visible means हमको ऐसे कुछ सामने वो दिखती नहीं, बट आपके बिहेवियर से पता चलती है। What is attitude? The way you think, feel and behave। आप कैसे बिहेव करते हैं, एक आधी सिचुएशन आपको दी, सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं आप, एकदम से आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, दैट इज एन एटीट्यूड, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे, बिकॉज एवरीवन इज लाइक दिस इज बियॉन्ड। उसमें हम बोलते हैं कि ये एटीट्यूड होता है, ये हमको भी पता नहीं चलता बहुत बारे में। तो ये कुछ जैसे हमारी डिग्री होती है, डिग्री का एक कागज होता है, मैं बीटेक हूँ, मैं BSc एग्री हूँ, मैं MSc हूँ, PhD, ऐसे कुछ नहीं होता। सो एटीट्यूड इज लाइक द वे यू बिहेव, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। द स्किल, व्हाट इज, अभी स्किल क्या है? स्किल एक चीज ऐसी है, स्किल इज एबिलिटी टू वर्क। एबिलिटी टू वर्क मतलब हम जो कुछ भी आपने सीखा है, काम आपने सीखा है, समझो आप एक PPT बनाने का, प्रेजेंटेशन बनाने का आपने सीखा है, तो ये स्किल हो गया आपको। तो द एबिलिटी टू गेट द वर्क डन, या फिर एबिलिटी टू वर्क, जो कुछ काम कर रहे हैं उस जो स्किल सीखा है वो आप एबिलिटी कैसे करते हो, इसको स्किल करते हैं। नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन टू डू द टास्क, जो आपकी टास्क की है उसका इंफॉर्मेशन नहीं। नॉलेज एंड स्किल आर डिफरेंट थिंग्स। See, knowledge may be having n number of things you must be having knowledge, but skill is I think only 1, 2 or 4, 5, 10, 11, whatever the skill may be, that is the limitation of skills. So that is the skill, knowledge, these 3 things every company is primarily looking after every candidate. उसके बाद में जो आता है, that is what is companies are expecting is needs. What is expected?
कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनी क्या मतलब देख रही है, जो जो अभी जॉब, कौन से भी जॉब में, कौन से भी करियर अपॉर्चुनिटीज में जब जाते हैं, कुछ भी कंपनी जब अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है, कौन सा भी पोजीशन के लिए, सीनियर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या स्टार्टिंग पोजीशन हो, आपकी कौन सी भी पोजीशन है, व्हाट दे आर एक्चुअली नीडेड, उनको क्या चाहिए। उसके बाद में आता है वांट्स। वांट्स का मतलब है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, कि बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो वांट्स है, मेरी जो ज़रूरत है कि भाई मैं एक सिटी में जॉब चाहता हूँ, एक मेट्रो सिटी में चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम, कैसी सिचुएशन, मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, कौन सा जॉब मुझे चाहिए, सेल्स में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, R&D में चाहिए, अकाउंट्स में चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए, विच डिपार्टमेंट आई वांट। सो दीज आर कॉल्ड वांट्स। ये हमको ये भी समझना होता है। तो ये चीज़ें हम समझेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ कि स्किल्स नॉलेज एंड जो होता है, स्किल्स नॉलेज हमने समझ लिया। अभी जो एटीट्यूड होता है वो होता है कि सेल्फ इमेज, ट्रेट एंड मोटिव। जो मैंने आपको अभी बोला कि दीज थिंग्स आर नॉट विजिबल। ये जो अंडर वाटर होता है, अंडर वाटर मतलब हमारे पीछे कहीं तो डीप डाउन सेल्फ इमेज होती है कि भाई आपको खुद को कैसे देखते हो। डू यू लुक, मतलब आपके पीछे आप ऐसे बोल रहे कि नहीं नहीं मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मैं मतलब कोई भी चैलेंजेस फेस कर सकता हूँ, इस चीज़ से देखते हैं, या फिर यू लुक वेरी लाइक आप उसमें कुछ कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखते, आपको नहीं लगता नहीं 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 मुझे नहीं ये पता, सो आप खुद को कुछ ब्लेम करते रहते हो। सो व्हाट इज एक्चुअली द सेल्फ इमेज। आपकी आपके दिल में, आपके मन में एक इमेज होती है कि मैं कैसा हूँ, मेरे मन में मैं कैसा हूँ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सेल्फ इमेज इज लाइक वो इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। आपकी सेल्फ इमेज अगर बहुत अच्छी है, नहीं नहीं मैं जो कुछ भी मुझे काम दिया जाता है मैं अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, और मेरे बॉस जो चाहते हैं मैं कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा नॉलेज भी अच्छा है, तो ये जो है, सो दैट सेल्फ इमेज इज गुड सेल्फ इमेज अगेन। अगर मेरे दिल में रहता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा मतलब अच्छी बात नहीं करता, या फिर मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरे कपड़े ऐसे हैं, ऐसे कुछ सेल्फ इमेज रहती है, तो आप देन यू कैन नॉट परफॉर्म वेरी गुड। सो दैट इज एन पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज। ट्रेट एंड मोटिव्स जो होती है वो भी वैसी ही पार्ट होती है जो सेल्फ इमेज के तरीके से होती है। सो मोटिव्स का मतलब भी वही है कि अगेन इन द व्हाट थॉट प्रोसेस यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम, आप क्या थॉट प्रोसेस से ऑपरेट कर रहे हैं, अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो उसके बारे में बाद में हम ये चेक करेंगे कि स्टेप्स ऑफ हायरिंग द राइट पीपल। कंपनी, अभी ये आई एम टेलिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनीज। कंपनीज क्या सोचती हैं बिफोर दे आर सेलेक्टिंग एनी कैंडिडेट फॉर द जॉब, फॉर द रोल। फर्स्ट थिंग इज रोल टास्क। अभी देखिए रोल्स बहुत सारी होती हैं आज की तारीख में, अगर डिफरेंट रोल्स आज के ज़माने में आती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में भी अपने अगर हमने सोच लिया तो डिफरेंट कंपनीज अलग अलग रोल दिखाती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये 3 तो होती हैं डिपार्टमेंट। HR, अकाउंट्स, ये भी होता है। ऑपरेशंस में, प्रोडक्शन में होता है। HR में आपको पता है कि HR में भी बहुत सारी रोल्स होती हैं, या फिर R&D में होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग अलग रोल्स यहाँ कंपनीज में ऑफर करते हैं। बट देयर इज की रोल टास्क का मतलब है एग्जैक्टली कंपनी को क्या चाहिए, ये रोल में क्लैरिटी है क्या। क्योंकि बेसिकली बहुत बार ऐसे होता है कि रोल जो दिया हुआ पेपर ऐड हो, या फिर कोई भी जो या लिंक्डइन पे हो, जहाँ कोई जो जॉब पोस्टिंग रखी है, तो एग्जैक्टली दैट इज ओनली लाइक बहुत बार ऐसे होता है ना, मैं आपको ट्रूली बताता हूँ कि ये कंपनियां क्या करती है भाई, जो उनका HR डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट क्या करता है, चलो सेल्स के लिए बंदा चाहिए, हाँ सेल्स क्या करता है, सेल्स गूगल पे जाता है HR का बंदा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल्स पीपल। सो गूगल में कुछ स्टैंडर्ड दिख जाता है तो वो कॉपी पेस्ट करता है, ही विल पुट ऑन लिंक्डइन। सो दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू डू द थिंग्स। ऐसे नहीं है, क्योंकि थिंग्स आर लाइक डिफरेंट हर सिचुएशन में। देखिए हर कंपनी में अगर सेल्स का भी बंदा चाहिए तो हर एक कंपनी को अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए। सो बेसिकली HR वाला कितना मतलब उसको पता है क्या प्रोसेस क्या है हायरिंग की,
मैनी टाइम्स इट डजेंट मैच। सो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर उसका राइट आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ नहीं है, रोल क्लैरिटी नहीं है, रोल टास्क नहीं, उसका क्लैरिटी नहीं है, सो यू मे बी लाइक ट्रैप इन अ डिफरेंट सिचुएशन। लाइक उसमें ये फिर यार जॉब में तो ये लिखा था, जॉब डिस्क्रिप्शन में तो आपने ये लिखा था, एंड आप एक्चुअल तो मुझे और ही कुछ दिख रहा है जॉब में आने के बाद। सो उस टाइम में तो बहुत मतलब अब हमारी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब कोई छोड़ के दूसरे नए जॉब में आते हैं, फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि हम छोड़ भी नहीं सकते। सो दैट इज़ द डिफरेंट सिचुएशन वी मेक आउट। सो उसमें ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, रोल टास्क क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। दूसरा उसमें है कि जैसे हमने अभी देखा कि एटीट्यूड्स इसके बारे में हमने समझ लिया क्या एटीट्यूड चाहिए, सेल्फ इमेज, ट्रेट्स, मोटिव, स्किल्स, नॉलेज, इसके बारे में समझ लिया। सोर्सिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो कंपनियां, जो आपको भी पता है कि एम्प्लॉय रेफरल्स होती है, सोशल मीडिया कैंपेन्स होता है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट होती हैं, एक मिनट, हाँ, तो ये बहुत सारा होता है, ये भी हमने समझ लिया। अभी ये भी हमको पता है कि जॉब पोर्टल्स होती है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये सोर्सिंग की स्ट्रैटेजीज कंपनियां करती हैं। उसमें ये है कि स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन जो होता है उसमें बेसिकली देखिए आज की जो नई प्रोसेस है उसमें इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अभी कुछ कंपनियों को पता होता है कि भाई उनका इंटरव्यू एग्जैक्टली कैसे लेना चाहिए, नहीं तो जो कंपनियों को स्टैंडर्ड पता है उसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। देखो सिर्फ आपको इंटरव्यू के जाते समय सिर्फ आप दिखते कैसे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बस उसके साथ में आपको जो आप बिहेव कैसे करते हो, बोलते कैसे हो, ये भी ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग जो अपना स्क्रीनिंग के दरमियान, सिलेक्शन के दरमियान कंपनियां करती हैं। दूसरा इसमें कि आस्किंग द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर इवेल्युएटिंग योर एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स। आपका एटीट्यूड कैसे चेक करना है तो उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछेंगे, समझो आपको पूछा नहीं आप सेल जॉब के लिए आए हों तो आप मुझे बताइए आप सेल्स टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो आप बोलेंगे यार हाँ हाँ सर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर हम करेंगे, ये तो हाँ ही बोलना है। सो दिस इज नॉट द वे टू आस्क, मतलब ये क्वेश्चन अगर आया तो आप यस ही बोलेंगे, बट अभी जो HR डिपार्टमेंट है कंपनियों का तो वो अभी स्मार्ट हो गया है, तो उनको पता है यार ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना है। आपको कुछ मतलब ऐसे पूछा जाएगा नहीं यार अगर आपकी ये सिचुएशंस दी गई तो आप इसमें कैसे बिहेव करेंगे, या फिर आपको फील्ड में भेजा गया तो आप सेल्स कैसे करेंगे इस चीज़ का, आप मुझे करके दिखाइए। ये जो एक्चुअल टास्क एंड असाइनमेंट्स जो होती है फॉर इवेल्युएटिंग स्किल्स ये दी जाती है, सो उसके बारे में आप रेडी रहना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ इवेल्युएटिंग योर नॉलेज वो तो दैट इज़ अ रेगुलर प्रोसीजर, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड आज की जो सीनियर पोजीशंस पे जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उसको साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी किया जाता है बहुत बार, क्योंकि वो असेसमेंट ऑफ बेसिकली एटीट्यूड एंड स्किल्स के बारे में ये होता है। तो ये हम कंपनियों के बारे में देखने के बाद अब हम इम्पॉर्टेंट मतलब इस पे आते हैं स्लाइड पे। अभी मुझे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ अपने को कहना है कि एक्चुअली हम जो जिस भी जॉब में जाना चाहते हैं, हम जो भी जॉब करना चाहते हैं, तो हम किस लिए करना चाहते हैं? क्या सिर्फ हमको सैलरी मिलती है इसीलिए करना चाहते हैं, या कुछ अपना पैशन है इसलिए कर रहे हैं? अपना पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन मैच है, जिसको हम इकिगाई बोलते हैं। इकिगाई आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भाई मैं जो आदमी हूँ, हु आई एम अ पर्सन, जो मैं अभी बना हूँ, मतलब मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, कोई जो कुछ मुझे अच्छी चीज़ करने में लगती है, बहुत सारा इंटरेस्ट, मुझे जॉब बोरिंग नहीं लगता। सो उसमें अगर आपको इम्पोर्टेंट ये समझना इस स्लाइड पे ये है कि आपका जो कुछ भी इंटरेस्ट है, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये अजिल रॉय नाम के एक ये हैं व्यक्ति हैं। सो उनका एक पैशन क्या है? उनका एक पैशन है कि देखिए ये है इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर, मेंटोरिंग फॉर रिजल्ट। दूसरा उसमें ये है कि बहुत सारा उनमें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, इनोवेशन में इंटरेस्ट है, टीम मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है इनको। अभी इनको अगर जो चारी अभी देखो, मैं पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन, हर चीज़ उनको मैच अगर होती है, सो दैट इज कॉल्ड एन राइट फिट।
देखिए, हर एक जॉब में आप किसी भी जॉब में आगे जाइए, आप एकदम स्टार्टर हो या फिर कोई 5-6 साल का आपका एक्सपीरियंस है या उससे भी ज़्यादा है, आई डोंट नो। बट उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आज की तारीख में आपका राइट फिट जॉब ढूँढना चाहिए। क्योंकि बहुत बार अगर ऐसा होता है कि मैं अगर सेल्स जॉब, हाँ ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई, मुझे एक ऑफ़र आया सेल्स में एंड मैंने बोला नहीं यार, अगर मुझे प्रोडक्शन में जाना है, प्रोडक्शन से बजाय मैं एमएससी हूँ, एमएससी हो तो भी ठीक है, मुझे इंटरेस्ट रिसर्च में है, तो बट मुझे सैलरी ज़्यादा मिल रही है सेल्स में। सो आई मतलब मैंने चूज़ कर लिया, नहीं नहीं मुझे मैं सेल्स में जाता हूँ। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच, बिकॉज क्या है, आपको जो इंटरेस्ट बेसिकली जो जिस चीज़ में है, आपका दूसरा इंटरेस्ट भी और दूसरा आपका नेचुरल जो कुछ भी आपका पैशन है, आपको लगता है कि इस चीज़ में मुझे जाना चाहिए, करियर मुझे इसमें परस्यू करना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है करियर के शुरू में। क्योंकि अगर वो चीज़ आप मैच नहीं करेंगे तो दैट विल बी बिकम एन बड़ा रोड ब्लॉक बनेगा आपकी करियर के आगे जाके। सो शुरू में ही आपको अगर जॉब ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लगता होगा, कंपनीज अच्छी नहीं मिलती होंगी, तो भी आप उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ये 4 चीज़ें या इकिगाई जिसको हम बोलते हैं, दैट इकिगाई शुड बी मैच। क्योंकि अगर वो नहीं मैच होता तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। जैसे इस मतलब एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अजिल रॉय जो है कि उनका जो थिंग्स कैन बी पेड फॉर, अभी जैसे गिविंग लेक्चर्स एंड क्लासेस, राइटिंग बुक्स, जैसे C++ लैंग्वेज के लिए भी होता है, मैनेजिंग टेक्निकल पीपल, ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट, जो हम यहाँ कर रहे हैं कि इसके अजिल रॉय के पास कुछ चीज़ें हैं, पैशन, बट पैशन को भी पैसे के स्वरूप में हो, मतलब कोई पे भी करता है या फिर उनकी सिर्फ पैशन है कि, क्योंकि देखो ऐसी बहुत सारी पैशंस होती है जिनको मार्केट में उसका वैल्यू नहीं होता, ऐसे भी होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता ना। जैसे कोई मुझे लगता है कि नहीं मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो साइकिल चलाने को कोई पैसे देगा क्या? नहीं। बट लाइक दैट ओनली, मतलब पैशन आपका प्रोफेशन बनना चाहिए। प्रोफेशन मीनिंग उसको कुछ पैसे देने चाहिए मार्केट में, उसको वैल्यूएशन है क्या। सो दैट यू शुड बी लिस्ट योर पैशन, दैट इज टू बी बिकमिंग प्रोफेशन। वो आपको जो आपके टैलेंट है उसमें आप लिस्ट करो, उसको प्रोफेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, वो देखो, एंड दैट में आगे जाके फिर उसका आप मिशन भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ द राइट फिट फॉर एवरी जॉब। तो उसके बारे में बाद में हम इम्पॉर्टेंट अभी देखेंगे कि डिस्कवर योर वांट्स। उसके बाद में आप जब राइट फिट जो बोलते हैं पर्सनैलिटी आपकी क्या है, इसके अनुसार आपने जज कर लिया आपको, नहीं भाई मुझे ये ऐसा हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मुझे ये, मेरे पास ये स्किल्स है, ये नॉलेज है मेरे पास, ये मेरा एटीट्यूड है, मुझे ये जॉब अच्छी करनी चाहिए, मैं नेचुरली ऐसे मतलब हुआ हूँ, देखिए हर एक आदमी अलग है दुनिया में। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ आपको कि दुनिया में आपको थंब जो प्रिंट होता है, हमारा आधार कार्ड जब चेक करते हैं लोग तो थंब प्रिंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हर एक आदमी अलग है, अपना भाई भी हो, अपनी इवन बहन भी हो, तो हम कोई भी एक जैसे सिमिलर नहीं है। वी आर ऑल डिफरेंट ह्यूमंस बिकॉज गॉड हैड मेड अस। सो लाइक दैट ओनली एवरी ह्यूमन